Everything is fine? Yes, ma'am. Okay. So in last class, we were doing clauses. So what is a clause? What are clauses? Is it clear to you? What is a clause? Is it clear to you or not? क्या वो क्लॉज किसी को भी समझ में नहीं आया? क्लॉज क्या होता है? यस आदित्य, यस मैम, नाम लिया आपने अभी? यस बेटा, मैं वही पूछ रही थी, क्लॉजेस आपको समझ में आया नहीं आया? क्लॉज क्या होता है? Clause is the part of sentence that contains a verb, and individually these are called sentences when these are separated. But when we join two sentences to make one compound, one simple or one complex sentence, now these two parts, these two joined parts are called clauses, and combined again it is a sentence. Now it may be a simple sentence, or it may be a complex, or it may be a compound sentence. ठीक है? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्लॉजेस कैसे होते हैं, how to identify clauses. In your syllabus you have conditional clauses, and conditional clauses are there in complex sentences. Remember, when we have one compound or complex sentence, there are two clauses in that. One is principal clause, another is subordinate or coordinate clause. In conditional clauses, we have one subordinate and one principal clause. And this subordinate clause again may be about time, place, condition, manner, contrast, purpose, reason, etc. Out of these 9 clauses, you have conditional clauses in your syllabus. What is a conditional clause? Conditional clause is that clause which tells us about some condition. Condition is, क्या condition होती है कि अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है? तो condition is the situation or the state upon which happening of something else depends. जिसके पूरा होने या ना होने पर किसी दूसरे कंडीशन का होना या किसी दूसरी सिचुएशन का या दूसरी एक्टिविटी या एक्शन का होना डिपेंड करता है, that is a condition. Obviously, condition clause describes a situation or condition on which something else is dependent. And this conditional clause may be of different types. First, probable condition. As you can see, probable condition is likely condition that may happen. Next we have hypothetical condition, that is unreal, impossible condition, and zero condition. So these 4 types of conditions are there. First of all, what is probable condition? Probable condition, that is likely to happen. For example, if it doesn't rain, we'll play a match. Is the sentence visible to you? ये सेंटेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? हेलो, हाँ दिख रहा है मैम. ठीक है.
इट डजंट रेन, कंडीशन क्या है? इफ इट डजंट रेन, अगर बारिश नहीं होती है, ठीक है, सो दिस इज अवर कंडीशन. कैसी कंडीशन है? लाइकली कंडीशन दैट मे बी पॉसिबल. सो प्रोबेबल कंडीशन इज लाइकली कंडीशन दैट मे बी पॉसिबल. So if it doesn't rain, we'll play a match. If he asks for help, I'll help him. Or if he requests, I will help him. If he wins the race, he will get a prize. All these are probable conditions. Now the thing to take care of, आप मुझे बताइए क्या ये आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ गया है? इफ इट डजंट रेन वील प्ले अ मैच. व्हाट इज स्पेसिफिक हियर? व्हाट इज स्पेसिफिक इन दिस सेंटेंस? इसको आज पूछा जाए. साहिल ठाकुर, साहिल, शिवम, Yes, ma'am. yes शिवम, व्हाट इज स्पेसिफिक इन दिस सेंटेंस बेटा? व्हाट इज पेक्यूलियर, जो आपको थोड़ा अलग लग रहा है? Ma'am, it depends upon the rain. चलिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ. जब हम हिंदी में बोलते हैं कंडीशन को, तो हम क्या कहते हैं? अगर बारिश नहीं होगी तो हम एक मैच खेलेंगे, हम फुटबॉल खेलेंगे, हम घूमने जाएंगे. इन हिंदी बोथ द सेंटेंसेस, बोथ द क्लॉजेज आर इन फ्यूचर टेंस. अगर बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, अगर वो आएगा, अगर तुम पढ़ोगे, अगर तुम मैच जीत लोगे, अगर तुम फर्स्ट आओगे, फ्यूचर टेंस. But when we use the same sentence in English, we have to take care of tenses. Here, the conditional clause is in present indefinite tense or in simple present tense, and principal clause is in future tense. आप यहाँ पे इसको देख सकते हो. If it doesn't rain, ये जितना भी ये पोर्शन है, if it doesn't rain, it is in simple present tense. If he comes, I will help him. If you stand first in the class, or if you score good marks. So it is always in simple present tense, and rest of the sentence यानी principal clause is in future tense. ये आपको ध्यान रखना है. अगर आप इसको बनाते हैं if it will not rain, we will play a match, you are wrong. Your sentence is incorrect, you will not get marks for that. और यही सेंटेंस कई बार इस तरीके का यही स्ट्रक्चर्ड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में भी आता है, where you are supposed to correct it, what? Correct the tense. ठीक है? So you should not go like this. If it will not rain, we will play a match. Wrong. If it doesn't rain, we will play a match. I hope it is clear to you. Next is, I will help you in your assignment if you help me clean my room. What is condition clause here? What is condition clause in this sentence? Rati, condition clause. If you help me clean my room. Help. If you help me, yes, if you help me clean my room, this is condition clause, and you can easily see it is in simple present tense. I'll help you in your assignment. This is in future tense, and this is a principal clause. Now, one more thing, you can use this condition clause either in the beginning or after the principal clause. उसमें कोई difference नहीं है, ठीक है?
जिसको आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है उसको आप पहले रख देते हैं, ठीक है। सिर्फ उतना इसमें फ़र्क है, अदरवाइज देयर इज़ नो डिफरेंस। आप उसको पहले यूज़ कीजिए या बाद में कीजिए। जिसको आपको प्रोमिनेंस देना है, जिसको एम्फेसाइज करना है, फोकस जिस पर है, दैट क्लॉज शुड बी मेंशन्ड इन द बिगनिंग। इफ यू फील हॉट यू मे ओपन द विंडो। प्रिंसिपल क्लॉज हियर आस्था। Ma'am, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज क्या है इसमें? इफ यू फील हॉट यू मे ओपन द विंडो, विच पार्ट इज प्रिंसिपल क्लॉज? ma'am, if you feel hot. दिस इज कंडीशनल क्लॉज, ये कंडीशन है। अगर तुम्हें गर्मी, यू मे ओपन द विंडो, यू मे ओपन द विंडो क्लॉज। यू, इफ यू फील हॉट, दिस इज कंडीशन। इफ यू गो आउट डोंट फॉरगेट द ग्रोसरी। इफ यू कंडीशनल क्लॉज, दिस इज द कंडीशन कि अगर तुम बाहर जा तो ग्रोसरी लाना मत भूलना। Now again you can first two sentences में मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में था। थर्ड टेंस से मेन क्लॉज आपका यू ओपन द विंडो एक ऑक्सिलरी सेंटेंस है। फोर्थ में अगर आप देखें तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द ग्रोसरी, ठीक है। Then we have hypothetical conditions. Hypothetical conditions are those conditions which are unreal, which are based on our imagination. Unreal condition, imaginary conditions. If I won a million rupees, I would build a 5-star hotel. I would fly around the world. फ्यूचर में रिसेंट फ्यूचर में पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती है, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी इमेजिनेशन आप सिर्फ सोच रहे हैं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड, अनरियल कंडीशन। इफ आई गॉट एन इन्विटेशन आई वुड, अगर मुझे इन्विटेशन मिला तो मैं शादी, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अनरियल कंडीशन। Were he honest? I might feel some sympathy for him. अगर वो ईमानदार होता, अगेन कंडीशन, अगर वो ईमानदार होता, इसका मतलब नहीं है आपकी इमेजिनेशन है खाली, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें इफ़ आई एम रिच और इफ़ आई बिकम रिच नहीं, इफ़ आई वर्क, यानी आप इसमें पास्ट टेंस ही यूज़ करते हैं। इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल। Then we have impossible condition. Now this impossible condition is related to past. और क्योंकि past जा चुका है, again it is not possible, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? Impossible condition. If we had played well, we would have won. अगर हमने अच्छा खेला होता हम मैच जीत गए होते, यानी पास्ट से रिलेटेड है। दिस इज इम्पॉसिबल कंडीशन। इफ वी हैड प्लेड वेल, क्योंकि अब नहीं हो सकता, उस मैच के बारे में नहीं हो सकता। वी कैन विन सम अदर मैच और वी कैन विन ऑल द मैचेस, ऑल द कमिंग मैच, जितने भी मैच आगे होने वाले हैं वो हम जीत सकते हैं, बट नॉट दैट वन, दैट इज गॉन, दैट इज इम्पॉसिबल। सो पास्ट रिलेटेड जितने भी कंडीशंस हैं, दीज आर कॉल्ड इम्पॉसिबल कंडीशंस। And for this structure we use past perfect tense and past tense of auxiliaries would, should, will, have. Would have won, if he had helped me, अगर उसने मेरी हेल्प की होती, I would have won the match, I would have completed my work. तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया होता, लेकिन अब वो पूरा उस वक्त में नहीं हो सकता। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर।
लास्ट ईयर वो पास कर सकता था, बट नाउ ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन. ही कैन पास दैट एग्जामिनेशन इन दिस ईयर और इन कमिंग ईयर्स, बट नॉट इन दैट ईयर. Zero condition. Zero conditions are there to express general truth. अब general truth क्या है? If water is heated at 100 degrees Celsius, it boils. If we keep ice in the open, it melts. If we heat iron, it expands. So these are general truths. That's why this is called zero condition. इसको हम जीरो कंडीशन इसलिए कहते हैं कि इसके ना होने के चांसेस नहीं हैं. अगर आप वाटर को गर्म करेंगे तो वो बॉयल होगा ही. अगर आप आइस को बाहर रखेंगे वो मेल्ट होगा ही. तो वो एक जनरल ट्रुथ है जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव की गुंजाइश नहीं है. वट एवर इज दैट इज देयर. सो दिस इज कॉल्ड जीरो कंडीशन. Is it clear to you? Is it clear? जल्दी से बताइए. Yes बेटा. Ma'am, hypothetical conditionals and impossible conditionals are same. Hypothetical conditions are those conditions which are based on our imagination. जो हमारी imagination को दिखाती हैं खाली. ठीक है. जैसे if I were a bird, I would fly in the sky. तो ये क्या है? This is hypothetical condition. It is my imagination. Were that I a bird, काश मैं एक चिड़िया होती. Were that I a bird, काश मैं एक चिड़िया होती. I would fly in the sky. ये मेरी इमेजिनेशन है क्योंकि चिड़िया तो मैं नहीं हूँ, नहीं हो सकती हूँ. लेकिन इम्पॉसिबल कंडीशन क्या है? इम्पॉसिबल कंडीशन इज रिलेटेड टू पास्ट. इट इज अबाउट पास्ट इवेंट्स, जो टाइम जा चुका है. फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी आपको दिया, इफ वी हैड, किसी को भी नाम ले लेते हैं चलिए. इफ रवि हैड वर्कड हार्ड, ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर. अगर रवि ने मेहनत की होती तो वो लास्ट ईयर पास कर सकता था, लेकिन लास्ट ईयर उसने मेहनत नहीं की, पास नहीं कर पाया. दैट इज इम्पॉसिबल कंडीशन, क्योंकि ना तो वो लास्ट में दोबारा जाके एग्जाम दे सकते हैं और ना ही उस एग्जाम को लास्ट ईयर में पास कर सकते हैं. ठीक है. सो द कंडीशंस दैट स्पेकुलेट अबाउट पास्ट इवेंट्स आर इम्पॉसिबल कंडीशंस. इफ आई हैड बीन देयर, आई वुड नॉट हैव डन दिस. अगर मैं वहाँ होता तो मैं ऐसा नहीं करता, या मैंने ऐसा नहीं किया होता. यानी जिसने भी वो किया वो हो चुका है. यू कैन नॉट चेंज इट नाउ. इम्पॉसिबल कंडीशन. तो इम्पॉसिबल कंडीशन इज रिलेटेड टू पास्ट इवेंट्स एंड हाइपोथेटिकल कंडीशन इज बेस्ड ऑन अवर इमेजिनेशन. इट इज अबाउट दैट. जो भी हम सोच सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो मैं एक ऑर्फनेज खुलवा दूँ, या मेरे पास काश मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो मैं एक हॉस्पिटल बनवा दूँ, 5 स्टार होटल बनवा दूँ, मैं अब्रॉड चला जाऊँ, मैं इधर घूमूँ, या ये कर दूँ, या काश मैं एक मिनिस्टर होता तो मैं पूरी सोसाइटी को चेंज कर देता. ठीक है. ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है दैट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन. और ये कंडीशंस आप इनको वर्ड से शुरू कर सकते हैं, इफ से शुरू कर सकते हैं, बट लाइक possible conditions, they don't take simple present tense or simple future tense. We use were or had in conditional clause, and for principle would have or should have plus third form of the verb. Sorry, first form of the verb. Should or would and first form, or impossible में should have, would have and third form of the verb like this. We would have won. I would have attended. Yes. Any other query? Any other question? अगर नहीं समझ में आए तो बेटा पूछ लीजिए, क्योंकि अगेन 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसको आप बहुत अच्छे से, मैंने ग्रामर का आपको बताया है. फाइनल एग्जाम्स में भी अराउंड 30 मार्क्स की ग्रामर आती है आउट ऑफ 75. कई बार 30 से भी ऊपर आती है अगर आप वोकैबुलरी वगैरह सब मिला लें. एंड यू कैन ईजीली स्कोर दीज मार्क्स. थोड़ा सा अटेंटिव
थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप कर लें, थोड़ा सा अटेंटिव आप उस वक्त हैं, यू कैन ईजिली स्कोर फुल मार्क्स इन दैट। लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, क्लैरिटी मस्ट है, क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी ऑफ द रूल्स, क्लैरिटी ऑफ फंडामेंटल्स एंड क्लैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इफ़ आई विन यहाँ पर कर देते हैं, इफ़ आई विन $1,000,000 आई वुड बिल्ड अ 5-star होटल, तो ये आपका सेंटेंस किस में चला जाएगा? पॉसिबल कंडीशन में। ये क्या शो करेगा? इसका मतलब आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा हुआ है या आपने कहीं और कुछ ऐसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तभी आप कह रहे हैं इफ़ आई विन, कि अगर मुझे मिल जाता है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी है दैट यू कैन गेट $1,000,000। But as it is your imagination, if I won or if I had, इसको आप पॉसिबल कैसे बनाएंगे? If I have $1,000,000, अगर मेरे पास आ जाए, यानी प्रोबेबिलिटी है आपने कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जहाँ से आपको लगता है कि आपके पास 1 million आ सकता है, so that is possible condition. For hypothetical, past tense is used: won, were, got, were, had, etc. Yes. Any other confusion? Question? बताइए जल्दी से। No, ma'am. सभी लोगों को क्लियर है या सिर्फ एक को क्लियर हुआ है अभी? क्योंकि आंसर सिर्फ एक का ही आ रहा है, बाकी तो सब साइलेंट है। ऐसा लग रहा है समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ठीक, देखेंगे जो भी होगा। गुड। बेटा आज चलो अभी तो मैं हाँ इस पे ले सकती हूँ, ठीक है, देखते हैं। आई एम गिविंग यू सम सेंटेंसेस, क्योंकि आज यहाँ इंस्टीट्यूट में मेरे पास नोटपैड नहीं है और थोड़ा सा यहाँ मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, बट ठीक है, अभी इसको ओरली कर देते हैं, फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज भेजूंगी इसकी, फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि जनरली एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स ही आते हैं 99% केसेस में। फिल इन द ब्लैंक्स यू आर सपोज टू फिल ईदर condition clause or main clause to complete the sentence. So I am giving you some clauses. You have to complete the sentence one by one. First is, I will tell him everything. I repeat, I will tell him everything. You have to complete the sentence with conditional clause. Ashima. बाकी लोग भी ट्राई कीजिए जल्दी से। आशिमा, if he completes my work. I will tell him everything if he Completes my work. तो आप ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हो उसको, अगर वो आपका काम करेगा तभी आप उसे सब बताओगे। चलिए ठीक है, स्ट्रक्चर इज करेक्ट। I will tell him everything if he completes my work or if he comes, if he is willing, if he is eager to know. तो किसी भी तरीके से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, बट इट शुड साउंड सेंसिबल। एक मिनट धृति, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इट शुड बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस धृति, गो अहेड, बताइए बेटा। बेटा क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप क्या बोल रहे हो? If he is trustworthy. ठीक है, आई विल टेल हिम एवरीथिंग इफ ही इज ट्रस्टवर्दी, ये भी ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, इफ ही इज ट्रस्टवर्दी। यस, आदित्य, आदित्य कुमार, आदित्य कुमार, अभिनव। यस मैम, मैम सेम सेंटेंस। सेम सेंटेंस बेटा, उसके बाद दूसरा देखती हूँ। आई विल टेल हिम एवरीथिंग इफ ही इज इंटरेस्टेड। इफ ही इज इंटरेस्टेड, ठीक है।
सेकंड सेंटेंस आप ही के लिए बेटा. Okay, ma'am. if you don't water the plants, this is conditional clause. आपको इसमें प्रिंसिपल क्लॉज फिल करना है. इफ यू डोंट वाटर द प्लांट्स, If you don't water the plants, they will die. हाँ, They will ड्राई die के लिए or हम यहाँ पर they यूज, will. यस दे विल डाई और दे विल विदर अवे. मुरझाने के लिए हम यूज करते हैं दे विल विदर अवे, WITHER. ठीक है. सो इफ वी डोंट और इफ यू डोंट वाटर द प्लांट्स दे विल विदर अवे, तो वो मुरझा जाएंगे. वेरी गुड. यस. नेक्स्ट सेंटेंस इज if I were a fish. If I were a fish. Anurag. Dhupam. Dhupam, are you there? Harsh Gupta. Harshit Chauhan. What is happening? Jay Kumar Jha. Yes जय, बताइए. अगर आप लोग ट्राई नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? मुस्कान. यहाँ पे हेजिटेशन छोड़ दो कि गलत होगा या सही होगा. सही होगा अच्छी बात है, गलत होगा तो अच्छा है क्योंकि आपको सही पता चल जाएगा. यस मुस्कान. मुदित. आस्था बताइए. Ma'am, if I were a fish, then I would be in pond. If I were a fish, I would swim in the water. If I were a fish, I would swim in the water. Remember, with if we should not use then. कभी भी हम if के साथ then यूज नहीं करते. This is incorrect. जब आपके पास इस तरीके का कोई भी सेंटेंस होता है, if I were a wish, वो फर्स्ट क्लॉज है, पहले आया है, उसके बाद आप then नहीं लगाएंगे. You have to put a comma after that. In written, you can put a comma, और oral communication में you have to give a little pause. बहुत छोटा सा pause आप देते हैं. That is sufficient to indicate. But never use then with if. ठीक है. हालांकि जनरली हम oral communication में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, but it is incorrect. So if I were a fish, I would swim in the water. Another sentence is, if he had all the wealth in the world, if he had all the wealth in the world, he would not be happy. I repeat, if he had all the wealth in the world, he would not be happy. आपको सिर्फ इसमें clauses बताने हैं, which one is principal clause and which one is conditional clause. Ma'am, he would not be happy is the principal clause, and Yes. And if he had all the wealth in the world, this is conditional clause. Good. Okay. Next sentence is, if you had bought a car a year ago, it would have cost you
much less than now. You can write the sentence, थोड़ा lengthy है. If you had bought a car a year ago, it would have cost you much less than now. कौन सी कंडीशन है? कंडीशन इज इफ यू कंडीशन क्लॉज इज इफ यू हैड बॉट ए कार अ ईयर अगो. पॉसिबल कंडीशन है, हाइपोथेटिकल है, इम्पॉसिबल है, कौन सी कंडीशन है? Yes, please. If you had bought a car a year ago, एक साल पहले अगर आपने कार खरीदी होती, मान्य, it would be have much lower rates than as now. वो तो सेंटेंस तो मैंने कंप्लीट बता दिया, आपको सिर्फ इसमें ये बताना है विच टाइप ऑफ कंडीशन इज दिस. इफ यू हैड बॉट ए कार अ ईयर अगो, दिस इज कंडीशन क्लॉज. ये कौन सी कंडीशन है? पॉसिबल, इम्पॉसिबल और हाइपोथेटिकल और जनरल कंडीशन? Possible condition. बेटा, इफ यू हैड बॉट ए कार ए ईयर अगो, अगर आपने एक साल पहले, ये पहले हुआ होता यानी पहले नहीं हुआ, और उस ईयर में खरीदना पॉसिबल नहीं है. Hypothetical, ma'am. ये खरीदी होती है. इम्पॉसिबल But it कंडीशन. can be hypothetical, na? If I would have been हाइपोथेटिकल बट इम्पॉसिबल है. एक तो हाइपोथेटिकल बट पॉसिबल भी हो सकती है कुछ कंडीशंस, लेकिन ये हाइपोथेटिकल बट इम्पॉसिबल है. क्यों इम्पॉसिबल? क्योंकि लास्ट ईयर में खरीदना अब पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब वो इस ईयर में खरीद सकता है, नेक्स्ट ईयर खरीद सकता है, लेकिन जो लास्ट ईयर की कॉस्ट थी वो अब नहीं मिलेगी, और लास्ट ईयर में कार खरीदना बैक डेट में जाके भी पॉसिबल नहीं है लास्ट ईयर में जाके. सो इट इज़ इम्पॉसिबल कंडीशन. So if you had bought a car a year ago, it would have cost you much less than now. अभी जितनी की आपको पड़ रही है वो कार, उससे बहुत कम में आपको मिल गई होती, लेकिन अब नहीं मिल सकती उस कम रेट में. That is impossible now. Okay. If you buy that car, drive it carefully. If you buy that car, drive it carefully. Zero condition. If you buy that, drive it carefully. No, it is possible condition कि अगर तुम ये वाली कार इसको ध्यान से चलाना. जीरो कंडीशन, यहाँ पे आपके पास और कोई चांस नहीं है. यानी जो जनरल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है. जनरल फैक्ट्स यानी वाटर में मतलब आइस मेल्ट्स, इट गेट्स हीटेड, इट गेट्स, उस तरीके की चीज़ें. ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को रखते हैं तो ऑब्वियसली बॉईल होगा ही, वो जनरल कंडीशन है. फिक फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड है वो कंडीशंस, जिसमें इफ और बट की गुंजाइश ज़्यादा नहीं है कि अगर ऐसा करोगे तो ही. ठीक है, चलिए ये बताइए इसमें ड्राइव इट केयरफुली, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? ड्राइव इट केयरफुली. आशिमा, which type of sentence is this? Drive it carefully. आशिमा अलग की आंसर दे चुकी है. निहारिका, निहारिका इसमें. सोनिका, Yes, ma'am. सोनिका पारेशर, Yes, ma'am.
type of sentence is this beta? Buy that car, drive it carefully. तो drive it carefully कौन सा clause? It is principal clause, लेकिन type of sentence बताना है. Type drive it carefully. Yes, come on, very simple. मैम हाइपोथेटिकल. No, आपको सिर्फ टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है. ड्राइव इट केयरफुली. ये सिंपल सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटेरोगेटिव है, फ्यूचर टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. क्या सेंटेंस है ये? आदित्य वापस आ गए हो खाना खा के? भी नहीं. आदित्य अभी भी नहीं है. यस चंचल. चंचल, is anyone there who can answer this? What type of sentence is this? Imperative sentence. Imperative sentence. Simple है बेटा. Drive it carefully. Imperative sentence. If you buy that car, comma, drive it carefully. Drive it carefully is imperative sentence. चलिए, मैं आपको 2 सेंटेंसेस दे रही हूँ. आपको सिर्फ ये बताना है कि दीज सेंटेंसेस आर करेक्ट और नॉट, और अगर इनकरेक्ट हैं तो क्यों हैं, करेक्ट हैं तो क्यों हैं. नोट डाउन द सेंटेंसेस और इसके बाद जैसे आप रिजॉइन करेंगे यू हैव टू आंसर. एज सून एज वी रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड. एज सून एज वी रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड. As soon as we reached the station, the train left. As soon as we reached the station, the train left. दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं, या एक सही है और गलत है, आपको जल्दी से ये बताना है. Manya, have you taken the screenshot? Yes, ma'am. ओके देन रीजॉइन. मैं एंड कर रही हूँ, अभी रीस्टार्ट करती हूँ. जल्दी से आइए आप लोग वापस. बताइए सेंटेंस सही है नहीं. Recording in progress. ओके, बताइए जल्दी से. आर दी सेंटेंसेस करेक्ट और नॉट? और एनी वन इज करेक्ट or both are incorrect? I think both are correct. Both are correct. Okay. Any other opinion? Anyone else? जल्दी से बेटा, बहुत important है ये. And first one is correct and second is wrong. First one is correct, second one is incorrect. Okay. ये किसने बोला है? Abhinav. Abhinav. Okay. Anyone else? I don't know about first, but second is wrong. First is right and second is wrong.
Abhinav is also saying the same. Anyone else? Chaitanya? Yes, ma'am. What is your opinion, beta? Ma'am, first one is wrong. First one is wrong, second one is correct. Yes, ma'am. Okay. कोई और भी है? चलिए ठीक है. In this, first sentence is correct, second is incorrect. Why first is correct? जबकि आप देखेंगे स्ट्रक्चर दोनों का बिल्कुल सेम है, सिर्फ लास्ट वाला एक वर्ड चेंज हुआ है, एक में अराइव्ड है, एक में लेफ्ट है. और शुरू में as soon as we reach the station, this is common. तब फिर फर्स्ट सही और सेकंड वाला गलत क्यों है? What is the reason? Abhinav? Yes, ma'am. Why first is correct and second is incorrect, बेटा? ये बिल्कुल सही आपने बताया. First is correct, second is incorrect. What's the reason? Ask And in the- second what's the sentence, reason? it should be हाँ. has left instead of left. नहीं, difference is नहीं, उसमें भी था the train left. As soon as we reach the station, the train left. Yes. Yes, Astha. Instead of using as soon as we can had I reached the station, the train left. नहीं, मेन रीजन यहाँ पर है, इसको ध्यान रखिए आप लोग. और आगे जब भी इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, कभी भी, नॉट इवन इन एग्जामिनेशन ओनली, कहीं भी अगर आप इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं तो ध्यान रखिए इसको यूज करते हो एज सुन एज को. एज सुन एज इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट. और अगर आपको कोई चीज़ नेगेटिव आपको बताना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नो सूनर देन. तो यहाँ पर होगा एज सुन एज वी रीच द स्टेशन. जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे, ट्रेन आ गई, तो ये पॉजिटिव था, अच्छा हुआ. लेकिन जैसे ही आप स्टेशन पहुँचे, ट्रेन चली गई, तो आपकी ट्रेन मिस हो गई, इट वॉज समथिंग नेगेटिव. तो उसके लिए आप एज सुन एज नहीं यूज़ करते, उसके लिए आता है नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट. नो सूनर, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए. वैसे मैं आपको अगर चाहे तो मैं इसका एक पिक भी आपको लेके नोट करके भेज दूंगी, लेकिन जो लोग नोट करना चाहें वो कर सकते हैं इसको. नो सूनर डिड वी रीच, REACH ओनली. नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन THAN, देन द ट्रेन लेफ्ट. सो फॉर नेगेटिव थिंग्स नो सूनर इज यूज्ड. और 2-3 बार ये फाइनल एग्जाम्स में आ चुका है इस तरीके का सेंटेंस, नो सूनर और एज सुन एज का एक्सचेंज. As soon as is used for positive and pleasant things. No sooner is used for negative or unpleasant things. Another example, जैसे ही डॉक्टर आया, ठीक है, पेशेंट की डेथ हो गई, नेगेटिव हुआ. सो नो सूनर डिड द डॉक्टर कम देन द पेशेंट डाइड. As soon as we reached home, इट बिगेन टू रेन. यानी आप घर पहुंचे तभी बारिश शुरू हुई, तो पॉजिटिव रहा कि आप बाहर होते तो परेशान होते, भीग जाते. सो घर आप वापस आ गए. लेकिन अगर आप इसका रिवर्स कर दें, एज सुन एज वी रीच मार्केट इट बिगेन टू रेन, ये रॉन्ग है क्योंकि वो नेगेटिव हुआ. सो नो सूनर डिड वी रीच द मार्केट देन इट बिगेन टू रेन. इट वॉज समथिंग अनप्लेजेंट. आपको एक ही शॉप के नीचे या कहीं शेड में आपको खड़े रहना पड़ा एंड यू कुड नॉट डू शॉपिंग properly. So it was something unpleasant or negative. For negative things, as no sooner than, and positive as soon as. So please take care of this.
तो ये आपका एक बार सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए, इसके बाद ये जो इस तरीके के डिस्कशंस हैं सॉरी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स वो हम करते रहेंगे। और इसी बीच में हम लोगों को कुछ जो आपकी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया what type of sentences are there and how to solve. Okay, now your attendance. Aditya, Yes, ma'am. अब सबके माइक ऑन, इससे पहले सब म्यूट चल रहे थे। आशिमा, Present, ma'am. गुड। अभिनव, Present, ma'am. आदित्य, आकांक्षा, अनुराग, अनुष्का, Present, ma'am. आरुषि, 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 आर्यन, आस्था, आयुष, चैतन्य, Present, ma'am. Chaitanya present. चंचल, धूपम, धृति, Present, ma'am. दिव्या, दर, हर्ष, हर्षित चौहान, Present, ma'am. हर्षिता, जय, कबीर, कार्तिक, कार्तिक गुप्ता बी, कार्तिक नेगी, Present, ma'am. कुलभूषण, कुलभूषण और कार्तिक, Ma'am, Karthik Negi. कुलभूषण, कुलदीप, मनीष, Present, ma'am. मान्या, Present, ma'am. मान्या, उदित, मुस्कान, नमित, Present, ma'am. Muskan present. नमित, निहारिका, निकुंज, नितिन, Present, ma'am. पंकज, हाँ बेटा लगा दिया आपका, पंकज, प्राची, प्रियांश, प्रियांशु, Present, ma'am. रजत, राजीव, ऋषि, Present, ma'am. साहिल, Present, ma'am. सना, शिव, शिवम, Shivam present, ma'am. शोएब, Present, ma'am. सिद्धांत, Present. सिद्धांत, Shoaib present. स्नेहा, हाँ बेटा शोएब का लगा दिए है, मैम शिव की लगा दी। शिव का भी लग गया है। मैम हेलो मैम हेलो हाँ बोलो, मैं शिव की लगा दी। शिव का लगा दिया है, शिवम, शोएब, सिद्धांत, स्नेहा, सोनिका, Present, ma'am. Ma'am, Sneha was saying that her connection is unstable. That's why she left the meeting at the last 1 minute. ओके बेटा। तक्ष, तरुण, योगेश, जिशान, जिशान, ओके।
आई होप कंडीशन क्लॉजेज आर क्लियर टू यू, लेकिन अगर नहीं हुए हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक आपका जैसे ही कंप्लीट होता है, आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू दीज क्लॉजेज वंस अगेन, जिसमें मैं आपको थॉरली सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लॉजेज क्या होते हैं, उनका डिफरेंस क्या है, एंड व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड द सेंटेंसेज एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज वो जानना ज़रूरी है थोड़ा, तो इसलिए हम वो एक्स्ट्रा एक प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे, एंड इट विल हेल्प यू इन नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग कंडीशनल क्लॉजेज क्लियरली। तो एक बार ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये कंप्लीट हो, उसके बाद वी विल गो थ्रू दीज क्लॉजेज वंस अगेन, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड विल क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, प्रैक्टिस शीट्स अभी बहुत कम लोगों की आई हैं, सबकी सबमिट नहीं हुई हैं, बाकी लोगों ने क्यों नहीं की अभी? बाकी लोग भी जल्दी से सबमिट कीजिए। ओके देन, सी यू टुमारो। टेक केयर एंड स्टे सेफ।